غزہ پٹی اور فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے، جینوسائیڈ لگاتار ہو رہا ہے اور غزہ پٹی کے مسئلے کو دنیا نے ایک طرح سے پھر نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن غزہ پٹی کے لیے ابھی تک سیز فائر کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو کوششیں ہو رہی تھی وہ کوششیں بھی رک گئی، بلکہ میرا تو ماننا یہی ہے کہ جس طرح غزہ پٹی کے حالات کو لے کر کے پوری دنیا میں ایک بیداری سامنے آئی تھی، یورپ کے بڑے بڑے ایکٹیوسٹ غزہ پٹی جا رہے تھے، غزہ پٹی کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے وہ مارچ نکال رہے تھے اور اسرائیل کی دنیا بھر میں بدنامی ہونے لگی تھی۔ اسرائیل بالکل بیک فٹ پر آ گیا تھا۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا کی توجہ اور ان کے اٹینشن کو غزہ پٹی اور فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک نئی جنگ اس نے شروع کر دی اور اسرائیل اور ایران کی لڑائی پر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہو گئی۔ اب دوبارہ غزہ پٹی کے حالات پر دنیا کی توجہ مرکوز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کہنا مشکل ہے، حالانکہ یورپ کے کچھ ملکوں میں ابھی بھی غزہ پٹی کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کچھ ممالک پہلے کی طرح اب بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کی دہشت گردی کی، اسرائیل کے ذریعے غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کی وہ شدید مذمت کر رہے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کو 627 دن ہو گئے ہیں اور روزانہ وہاں اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ اسرائیل کے فائٹر پلین روزانہ غزہ پٹی پر جا کر بموں کی برسات کر رہے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ آج بھی 37 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی غزہ پٹی میں شہادت ہو گئی ہے، اور جو سب سے زیادہ افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ 29 فلسطینی کی جو شہادت ہوئی ہے امدادی سینٹر کے پاس میں۔ غزہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن غزہ پٹی میں امدادی سامانوں کو تقسیم کر رہی ہے اور امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر لگاتار عام فلسطینیوں کو، غزہ پٹی کے مظلوموں کو، بے بس لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں امدادی سامان کی جو تقسیم کا سینٹر ہے، وہ جو کاؤنٹر ہے، وہ موت کا جال بن چکا ہے، موت کا گھاٹ بن چکا ہے، لیکن فلسطینیوں کے پاس آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ امدادی سامان وہی پہنچا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پہنچا نہیں رہا ہے۔ اور جب پچھلے کئی دنوں سے لگاتار امدادی سامان کی تقسیم کے کاؤنٹر پر فلسطینیوں کو اسرائیلی آرمی مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے، تو اب دنیا بھر کا ضمیر تھوڑا سا جاگنے لگا ہے اور دنیا کی 14 بڑی آرگنائزیشن نے یہ اپیل کی ہے کہ غزہ پٹی میں امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری انہیں سونپی جائے اور غزہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ ذمہ داری چھینی جائے۔ الجزیرہ کی یہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں خبر شائع ہوئی ہے کہ این جی اوز نے یہ اپیل کی ہے کہ امداد کی تقسیم کے نام پر غزہ پٹی میں انسانیت کی جو توہین کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اور دا انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس یعنی ICJ نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اور جو دوسری 14 آرگنائزیشن ہیں انہیں یہ ذمہ داری سونپی جائے، انہیں پرمیشن دی جائے کہ وہ غزہ پٹی میں امدادی سامان کی تقسیم کرے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر کے غزہ پٹی میں جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تقسیم کر رہی تھی امدادی سامان کو، ان تمام کو باہر نکال دیا گیا، ان سب کو روک دیا گیا، اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے منصوبہ بنایا کہ ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جائے گی، وہ غزہ پٹی میں امدادی سامان تقسیم کرے گی۔ یونائٹڈ نیشن کی جو آرگنائزیشن ہے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، ریلیف ورک کی، اس کو بھی روک دیا گیا، اور UN کی مرضی کے بغیر جا کر کے امریکہ کی حمایت سے اسرائیل نے ایک نئی تنظیم بنائی، غزہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور وہ امدادی سامان تقسیم کر رہی ہے۔ اور امدادی سامان کی تقسیم کے نام پر دراصل لگاتار وہاں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس نے اپیل کی ہے کہ اسے اور اس کے ساتھ 14 آرگنائزیشن کو غزہ میں ریلیف ورک کی اجازت دی جائے۔ آپ رپورٹ دیکھیں کہ اسرائیلی فورسز نے 37 فلسطینیوں کو غزہ میں آج قتل کر دیا ہے اور 29 کو امدادی سامان لیتے وقت یا فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر پر شہید کیا گیا ہے۔ کل بھی 20 کو شہید کیا گیا تھا، اور روزانہ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ غزہ پٹی کی جو تصویریں ہیں وہ بہت زیادہ ہولناک ہے۔ ادھر حماس کی طرف سے، القسام بریگیڈ کی طرف سے ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے اور لگاتار اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی کو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، جہاں جہاں اسرائیلی آرمی پہنچ رہی ہے اس کو یہ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہوسٹیج اور جو قیدی ہیں ابھی تک وہ حماس کے ہاتھوں میں ہیں، اور 627 دن ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کی آرمی، اس کی انٹیلیجنس اور موساد ان کو
छुड़ाने में, उनको निकालने में नाकाम हैं, और यही वजह है कि जंग का जो हदफ है वो अभी तक इजराइल हासिल नहीं कर सका है। एक और ख़बर ये सामने आई है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल की 3 आर्मी को हलाक कर दिया है, और आगे उसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे। आप एक और रिपोर्ट देखिए, अल जज़ीरा ने ये पूरा डेटा शाया किया है कि 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक गज़ा पट्टी में कितनी शहादत हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तो अब तक टोटल 5,998 लोगों की इजराइल के हमले में शहादत हो चुकी है, और ये जो डेटा है ऑफिशियल है, जो गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है। इसके अलावा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 20,000 ऐसे लोग भी हैं जो मलबा तले दबे हुए हैं, जो गायब हैं या उनका डेटा नहीं मिल पाया है। उसके बाद 18 मार्च 18 से जून 23, 2025 के दरमियान, दरअसल ये जो एरिया था वो सीज़ फायर का था। तो सीज़ फायर के बाद भी तकरीबन 5,685 लोगों का कत्ल हो चुका है। दरअसल 23 जून 2025 को हमास और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गई थी, जंगबंदी का माहिदा हो गया था, और हमास ने कैदियों को रिलीज़ कर दिया, और जो फ़लस्तीनी कैदी थे उनको हमास ने वापस बुला लिया। उसके बाद ये शर्त थी कि इजरायली आर्मी को धीरे धीरे गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा, लेकिन इजराइल ने सीज़ फायर का वायलेशन शुरू कर दिया, और सीज़ फायर का जो दूसरा मरहला था, पहला मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद 42 दिनों का, तो दूसरे मरहला में जाने से इजराइल ने इनकार कर दिया, और 42 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद इजराइल ने गज़ा पट्टी पर दोबारा अटैक शुरू कर दिया। तो दोबारा अटैक के बाद से लेकर के अब तक 5,685 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, और दरअसल ये सीज़ फायर के वायलेशन के वजह से हुआ है। उसके अलावा 1,000 लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी थे और वो मर गए हैं ज़ख्मी होने के बाद, या वो उनकी जो बॉडी है वो कहीं गायब थी, मलबा तले दब गई थी और उनकी शहादत हो गई है। उसके अलावा सीज़ फायर का जो ड्यूरेशन था जनवरी 19 से मार्च 17, 2025, तो सीज़ फायर का जो कंप्लीट ड्यूरेशन था 42 दिनों का, उसमें भी 170 लोगों को इजराइल ने शहीद कर दिया। और सीज़ फायर से पहले यानी जनवरी 2025 से पहले, या कह लीजिए 7 अक्टूबर 2023 से 18 जनवरी 2025 तक 46,913 लोगों की शहादत हो चुकी है, और अब टोटल शहीद होने वालों का जो नंबर है वो 55,998 तक पहुंच गया है। ये गज़ा पट्टी है, और देखिए गज़ा पट्टी का जो ज़्यादातर एरिया है वो इन दोनों इजराइल के कंट्रोल में जा चुका है। अफरा तफरी का आलम है, इसके बावजूद भी पूरी दुनिया चुप है। इधर एक और बड़ी खबर आई है, और दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आती है कि ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हो गया है, तो इजराइल के अपोजिशन लीडर ने यह मांग की कि गज़ा पट्टी के साथ भी सीज़ फायर होनी चाहिए, वहाँ भी समझौता हो जाना चाहिए। येर गोलान, लीडर ऑफ द सेंट्रल लेफ्ट डेमोक्रेट्स पार्टी, तो जो सेंट्रल डेमोक्रेट पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है इजराइल की, उसने मांग की है कि जिस तरह इजराइल और ईरान में सीज़ फायर हो गया है, उसी तरह गज़ा पट्टी और इजराइल में भी सीज़ फायर और जंग बंदी हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे भी इजराइल की जो तबाही है, बर्बादी है, वो आगे बढ़ेगी। गज़ा पट्टी में लगातार इजरायली सेना को मारा जा रहा है। जो होस्टेज हैं अभी तक वो हमास के हाथों में हैं, उनको हम रिहा नहीं करा सके हैं। उधर यमन के हौसियों का भी हम पर हमला जारी रहेगा, और यमन के हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल ने भी इजराइल में ज़बरदस्त तबाही हमेशा मचाई है। जो होस्टेज हैं उनकी जो फैमिलीज़ है, उन्होंने भी यही मांग की है कि गज़ा पट्टी में भी जंगबंदी हो जानी चाहिए, और जो कैदी है हमास के हाथों में, उनको जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए। एक और गुड न्यूज़ यह है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने बयान जारी करके कहा कि गज़ा पट्टी में सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए जो कोशिशें जारी थी, रुक गई थी, अब उस कोशिश को दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। आप इन्हें देख रहे हैं, ये कतर के प्राइम मिनिस्टर है शेख अब्दुर्रहमान अल-थानी, और इन्होंने बयान जारी करके कहा है कि गज़ा पट्टी में सीज़ फायर के लिए इजराइल और हमास के दरमियान जो बातचीत जारी थी, उस बातचीत को, उस डायलॉग को दोबारा शुरू किया जाएगा। दरअसल ईरान और इजराइल के दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाने की वजह से, लड़ाई शुरू हो जाने की वजह से ये सिलसिला रुक गया था, और अब इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है। एक और ख़बर है, और ये ख़बर भी गुड न्यूज़ है, इसराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक बहुत बड़ी कंपनी है मस्क, जो शिप का काम करती है। तो मस्क लाइन दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, और ये शिप की कंपनी है, ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, दुनिया भर में इस कंपनी का शिप चलता है। अभी इस कंपनी ने कहा कि वो तमाम कंपनी जो
वेस्ट बैंक में या मकबूजा फ़लस्तीन के इलाक़ों में यहूदी शटलर को बसाने का काम कर रही है। फ़लस्तीनियों को वहाँ से भगाया जा रहा है और इल्लीगल तरीक़े से यहूदी बस्तियाँ बसाई जा रही है। तो ऐसी कंपनियों के साथ डील करने से इनकार कर दिया है। उनके साथ मस्क की जो डील थी उस डील को इस कंपनी ने ख़त्म कर दिया है, माहिदा तोड़ दिया है। तो एक गुड न्यूज़ है और ये ख़बर पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब इस कंपनी ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है कि वो तमाम लोग और वो तमाम कंपनी जो इज़राइल में इल्लीगल बस्तियों को बसा रही है उसके साथ अब ये कंपनी कोई भी कारोबार और ट्रेड नहीं करेगी। इधर इज़राइल की तरफ से इस तरह का जो पोस्टर है, इस तरह का जो पर्चा है वो गज़ा पट्टी में तकसीम किया जा रहा है और जबालिया के लोगों को कहा जा रहा है वो दूसरी जगह खाली कर दें। लगातार मैंने आपको ये बात बताई है कि गज़ा पट्टी की जो आवाम है लगातार नक़ल मकानी कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह जाकर वो रहते हैं, फिर इज़राइली आर्मी आकर कहती है आप यहाँ मत रहो, कहीं और जाओ, हो सकता है यहाँ पर कोई सुरंग हो, यहाँ पर कोई टनल हो, हमारे हॉस्टेज को वहाँ पर छुपा कर रखा गया हो। फिर इजरायली बुलडोज़र लाते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमास ने हॉस्टेज को कहाँ छुपा रखा है। अभी तक मोसाद नाकाम है, CIA नाकाम है, तमाम एजेंसीज़ नाकाम है। भले ही मोसाद की बड़ी तारीफ़ की जाए कि मोसाद ने ईरान में बहुत मजबूती के साथ अपने कदम को बना लिया था, मिसाइल का कारखाना मोसाद ने इजराइल में खोल दिया था, ड्रोन असम्बल करने के लिए वर्कशॉप मोसाद का ईरान में चल रहा था, ईरान के टॉप लीडर्स तक मोसाद की एंट्री थी, उनका एक्सेस था। और इतना ही नहीं बल्कि पिछले एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि फ़्रांस की एक लेडी जो यहूदी थी वो इस्लाम कबूल करती है दिखाने के लिए, फिर शिया इस्लाम को अपनाती है, किताबें लिखती है और उसके बाद वो ईरान में टॉप लीडर्स तक पहुंच जाती है। ईरान के साबिक़ सदर का इंटरव्यू कर लेती है जिसका नाम है पेथरीन शेकडम, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जासूस थी, वो मोसाद की एजेंट थी और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहती थी और उसमें उसको कामयाबी भी मिल जाती है। फिर 2021 में वो ईरान को छोड़ देती है और जाकर के कहती है कि मैं तो यहूदी मज़हब पर बिलीव करती हूँ, मैं तो इसराइल पर बिलीव करती हूँ और मैंने मोसाद के एजेंट के तौर पर काम किया ईरान में और इसलिए मैंने शिया इस्लाम के अक़ीदे को अपनाया था। तो इतना मज़बूत नेटवर्क है मोसाद का और हमेशा से रहा है, लेकिन हमास के सामने मोसाद का कोई भी जासूसी नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है। कैदियों को, हॉस्टेज को तलाश करने में लगातार इजराइल नाकाम है और इसलिए पूरी दुनिया का यही तबसरा है कि हमास से अभी तक इस्राइल 22 महीने में जंग नहीं जीत सका है, भले ही उसने पूरे गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये इला कुल्ली मल्लम यखली बाद मिन जबालिया अलबलद वहया नहज़ा अर्रौज़ा व शमाल तफ़ा फ़ी मुल्कात, दरअसल ये नोटिस इशू किया जा रहा है कि ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ये जबालिया का एरिया है गज़ा पट्टी में और यहाँ जितने लोग रह रहे हैं ये सब खाली कर दे, यहाँ एयर स्ट्राइक किया जाएगा, यहाँ बमों की बरसात की जाएगी। कहा जा रहा है कि जैशुद्दफ़ा अल-इसराइली यामलु बिक़ुव्वतिन शदीदतिन जिद्दन फ़ी मनातिकुम लितदमीरिल मुनज़्ज़मातिल इरहाबिया, कि जो दहशतगर्द ग्रुप है यानी ये हमास को दहशतगर्द कह रहे हैं, तो इनके जो ठिकाने हैं उसको तबाह बर्बाद करने के लिए जबालिया के इलाके में इजरायली आर्मी पूरी क़ुव्वत के साथ हमला करेगी, एयर स्ट्राइक होगा, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल जाए। तो इस तरह का बार बार नोटिस इशू किया जाता है। उसके अलावा ये खबर देखिए और बहुत अहम खबर है, दरअसल अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम पर एक खबर जारी की है जिसमें अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक जगह इजरायली सेना पर हमला किया है और वहाँ 3 इजरायली आर्मी की हलाकत हो गई है। इजराइल के मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को कंफर्म किया है और RT उर्दू ने इस खबर को अपने यहाँ शाये किया है ट्विटर पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान करके कहा है कि उन्होंने 3 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। उसके अलावा लगातार अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से ये अपडेट भी सामने आती है कि इजरायली आर्मी को रोका जाता है, उसकी गाड़ियों को तबाह किया जाता है, उसके मरकावा टैंक को तबाह किया जाता है। पिछले दिनों में भी कई सारे इजरायली आर्मी की हलाकत हुई है अल-क़स्साम ब्रिगेड के हाथों। तो जो सबसे बड़ी बात है ये कि 22 महीना से गज़ा पट्टी पर हमला होने के बावजूद, कोई भी इमदादी सामान न होने के बावजूद, तमाम हस्पताल को ज़मींदोज़ कर देने के बावजूद भी अल-क़स्साम ब्रिगेड की जो मुज़ाहमत है, जो रेजिस्टेंस है,
वो जारी है, उसमें कमी नहीं आई है। और अभी भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सरेंडर नहीं किया है। ईरान के हमलों के सामने इज़राइल ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वहाँ दो बराबर के मुल्क थे। इज़राइल के पास एयरफोर्स की ताकत थी, जंगी जहाज़ थे, फाइटर प्लेन थे, और वो सारे के सारे अमेरिका के दिए हुए हैं। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी और ताकत थी, तो इज़राइल को वहाँ सरेंडर करना पड़ा। लेकिन हमास जो कोई आर्मी भी नहीं है, एक ग्रुप है, कोई मुल्क नहीं है, और वो ग्रुप है जिस पर शदीद पाबंदी है, जहाँ पिछले 25 सालों से कोई दाना तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं पहुँचा है, बल्कि हर कुछ इज़राइल की परमिशन से ही पहुँचा है। 2005 से वहाँ रहने वाले हमास के लड़ाकों ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक नई पॉलिसी बनाई, एक नई जंगी स्ट्रेटजी अपनाई, टनल बनाए, सुरंगें बनाई, और 22 महीना गुजर जाने के बावजूद भी इज़राइल अपने होस्टेज को नहीं तलाश कर सका है कि हमास ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है। जो कुछ भी इज़राइल के हवाले होस्टेज हुए हैं वो मुआहदे की बुनियाद पर, नेगोशिएशन की बुनियाद पर, डील की बुनियाद पर। तो ये हमास की जीत है, और अभी तक हमास की तरफ से रेजिस्टेंस जारी है, लड़ाई जारी है। ये सबसे बड़ी हमास की खूबी है, हमास की जीत है। और दरअसल ये ईमानी ताकत है। इस तरह की जो ताकत है टेक्नोलॉजी से नहीं आती, इस तरह की जो ताकत है हथियारों से नहीं आती, बल्कि ईमानी जज्बे से इस तरह की ताकत आती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।